Okay, hello. Good morning to all of you. Just a small correction, or very small correction. uh, कल सबसे आखिरी में ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा था ना, इसमें ये आखिरी वाली चीज जो है वो गलती से मैंने यहाँ पर आइसोकोरिक लिख दिया है. If n is equal to 0, it will be not isocoric, rather it will be isobaric. ठीक है. V पर पावर 0 होगा तो दिस विल बिकम 1. दैट मीन्स P is equal to constant. राइट. प्रेशर कांस्टेंट होता है तो द प्रोसेस इज आइसोबारिक एंड नॉट आइसोकोरिक. जल्दी में आखिरी में क्लोजिंग टाइम पर मैंने गलती से वो आइसोकोरिक बोल दिया, आइसोकोरिक लिख भी दिया. ठीक है. I opened up this sheet and realized that I have written it incorrectly or said it incorrectly. So just a correction, kindly note it down. n is equal to 1 पे ये n की वैल्यू 1 रहेगी तो pv is equal to constant isothermal Boyle's law. n is equal to gamma रहेगा तो that is the process is going to be known as adiabatic. n is equal to 0 पे it is going to be isobaric. ठीक है. बाय द वे अगर ये पूछा जाए कि n के किस वैल्यू के लिए ये आइसोकोरिक रहेगा तो व्हाट विल बी योर गेस? For what value of n the process will be isochoric? Any guesses? हेलो. हेलो. आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. ओके. मैं ये पूछ रहा हूँ कि n Sir, की. हाँ बोल. infinity. वेरी गुड. n is equal to infinity पर it will become isochoric. ठीक है. You guys can note it down. और let us now look at uh, forms of energy. ठीक है. Various forms of energy which we encounter. I mean, obviously there are multiple forms. We are not going to look at all the aspects and all the forms of energy over here itself. Yeah. But yes, some basic forms of energy has to be looked into in order to establish the first law. Okay. So I'll be explaining the basics of certain forms of energy. Energy क्या होता है? What do we understand by energy? Quite basic.
हम्म, what is the criteria to segregate the energy? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी, बचपन में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। ये डेफिनेशन पढ़ा था हम लोगों ने एनर्जी का। Yes, sir. वेरी गुड, तो बोलना था ना। हाँ, मैंने बोला था बेसिक्स है, जस्ट आई वांट टू नो। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क इज energy. That is one of the definitions of energy. There are other definitions also, depending upon uh, what that energy is going to do, or what is like what application it has, or from where it has transformed. It cannot get originated, therefore from where it got transformed, what is the methodology used for transformation. Based on that, we have different definitions of energies and different forms of energy. यहाँ पर primarily we are going to look energy from the perspective of its usefulness, and we have three categories of energy. ठीक है? The three categories are सबसे पहला जो फॉर्म होता है that is internal energy. ठीक है? Internal energy is something which is present inside the system or internal content of a system. This is internal content of the system. That is internal to a system. Internal energy content of any system. ठीक है? The second
form of energy or second categorization of energy with respect to system is or the energy which can be or the useful energy which the system can deliver to uh, the surrounding. Okay, the useful energy which can be delivered or the organized form of energy which can be delivered to the surrounding, and that is called as work. Okay, this is useful and organized form of energy delivered by the system, और actually delivered word use नहीं करते हैं, exchanged between the system and surrounding. Why exchange? It can be both way. Energy exchanged between system and surrounding. And then there is third form, which is heat. This is useless and unorganized form of energy. Exchanged between system and surrounding. Is it okay? So हमारे पास तीन चीजें हैं. पहला है इंटरनल एनर्जी, दूसरा है वर्क, internal energy. The second one is work, and the third one is the useless one, the heat, the unwanted one, the heat. ठीक है, अनवांटेड क्यों? इसकी जरूरत नहीं होती है, हम हमेशा इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, बट ये खुद ब खुद हमेशा ज्यादा हो जाता है और हमें इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, जितना ये निकलेगा और जितना हमने इनिशियली एनर्जी किसी को प्रोवाइड किया और जितना वो सिस्टम उसको उस एनर्जी को यूज करके और वर्क कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है, और ऑब्वियसली ये वेस्ट वाली पार्ट होती है, द पार्ट विच गॉट वेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क. Therefore this is unwanted and we always try to minimize this. Anyway, so we will discuss in detail about all these aspects and we'll try to see what they mean or mm, how they are related. ठीक है, let me start with first of all the heat. ठीक है, the unorganized form. अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के साथ स्टार्ट करने के पीछे पर्पस ये है,
इसका डेफिनेशन जो होता है ना कहीं इंटरनल एनर्जी के साथ ओवरलैप करता है। पहले इंटरनल एनर्जी सीखने पर द चांसेस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड विद हीट इज टू हाई। ठीक है। So I would like to or prefer to start with heat first, the unorganized form. To begin with, like, why do we call it an unorganized form of energy? ठीक है. Or see, the reason we call it unorganized form of energy is because it is unable to make uh, any organized impact either on surrounding or on the system. ठीक है. Merely by when energy is released in form of heat or when it is supplied in form of heat either to the system or surrounding, it never creates an organized change either in the system or in the surrounding. What do we mean by organized change? First of all, तो ऑर्गेनाइज चेंज का मतलब है एक पैटर्न को फॉलो करने वाला चेंज. ठीक है. What do we call, or when we call anything as organized? We call anything as organized when it is able to follow a defined pattern, whatever the pattern might be. But if anything is able to follow a defined pattern, we call it organized. If it is not following a defined pattern, we call it unorganized. ठीक है. जैसे, is it organized or not? ये organized है कि नहीं? And now have a look at it. Yes, The first one is organized, the second one is not. right? सी, मैंने यही लाइंस मतलब इस तरीके से लाइंस मैंने इसलिए बनाई. आई कुड हैव टेकन दिस थिंग एंड दिस थिंग. द चांसेस ऑफ कंफ्यूजन वुड हैव बीन मोर. या इसको और इसको कंपेयर करता तो मैंने ये पैटर्न और ये पैटर्न इसलिए चूज किया. The organized thing may not be always straight. It can be curved also, it can be circular also, but it will follow a fixed pattern repetitive over the entire space or the space it is occupying. ठीक है. Unorganized में whenever we have differences between different zones. ठीक है. If I am considering different zones of equal size, obviously the sizes has to be equal. ठीक है. And we are going to find incoherency. ठीक है. We are going to call it unorganized. ठीक है. And when the patterns are repetitive and coherent, we are going to call it organized. ठीक है. Same with energy. When an energy is being supplied, or that form of energy which when supplied to system or exits system, ठीक है, it makes an unorganized change in the system. ठीक है. It always make unorganized
चेंज इन द सिस्टम, ठीक है, या फिर सराउंडिंग, मतलब ये एनर्जी इस फॉर्म में एनर्जी जिसके पास जा रहा है, ठीक है ना, अगर वो सिस्टम के पास जा रहा है, सिस्टम को हम हीट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम के अंदर जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, दे आर गोइंग टू बी, चेंजेस आर गोइंग टू बी अनऑर्गेनाइज्ड, आर गोइंग टू बी अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वी आर टॉकिंग, इज समथिंग व्हिच इज important for you guys to know. We are primarily talking about unorganized changes में, we are primarily talking about the microscopic states. Microscopic states क्या आते हैं, remember microscopic state not macroscopic state. इसके अंदर में प्राइमरली दो चीजें थी, स्पेस कोऑर्डिनेट्स of particles, and second most important thing was momentum, momentum of particles. I hope we remember this. माइक्रोस्कोपिक स्टेट में यही दो की फैक्टर्स थे, Yes, sir. राइट, ओके। सो पहला वाला जो है दैट इज अ रैंडम चेंजिंग थिंग, इसके बारे में वी डोंट हैव अ कंट्रोल, वो चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। कोहेरेंसी ऑफ मोमेंटम इज समथिंग which makes things organized or unorganized, ठीक है। Incoherent change in momentum of particle makes, or anything which when given to the system makes incoherent change in momentum of particles is referred as unorganized changes being brought into the system, ठीक है। वहीं अगर कोहेरेंट चेंजेस क्रिएट होते हैं मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स में, वी कॉल इट ऑर्गेनाइज्ड चेंज, ठीक है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग यू टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड हीट, एंड एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वर्क टू। सी, ये सिस्टम है मेरा, इसमें सिर्फ अगर मैंने हीट दिया, ठीक है, इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी पार्टिकल्स के पास, और ये पार्टिकल्स क्या होंगे, और तेज तेज मूव करना चालू करेंगे, ठीक है। इनका रैंडम मोशन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, एम आई राइट। ऑन कॉन्ट्ररी, मान लो ये हीट दे रहा है बाहर सराउंडिंग को, तो इसका रैंडम मोशंस जो है, मोमेंटम जो है, momentum of every particle will decrease and random motions will decrease, यहां पर सिस्टम के अंदर एंड सराउंडिंग के अंदर में द रैंडम मोशंस विल इंक्रीज, ठीक है। द रैंडम मोशंस विल, यहां पर इसके आजू बाजू का जो एरिया होगा उसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स होंगे उनका रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेट अस टॉक अबाउट वर्क अ बिट। वर्क कब होगा, एक पिस्टन या एक सिस्टम जिसके अंदर एक वॉल जो है मेरा वो मूवेबल है, ठीक है, और मूवेबल होने की वजह से ही वो वर्क करेगा,
Okay, so this is my piston. Now see, अंदर के जो gaseous particles हैं, they are in random motion, ठीक है, and being in random motion, those particles are going to come and hit this piston, ठीक है, and they are hitting it all the time, but the piston does not expands on its own or keeps on expanding on its own, though we know that the particles are always coming and hitting it, ठीक है. The reason is obviously बाहर से भी प्रेशर उतना ही है, बाहर से भी पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं, दोनों तरफ के मोमेंटम और एक दूसरे को ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इसकी वजह से ये मूव नहीं कर रहा है. नाउ वी स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर बढ़ता है, एंड दिस सिस्टम इज or this the system is capable of expanding, becomes capable of expanding, and it starts expanding, due to which the piston will move backward, and this can be utilized to create some useful work or useful change or useful transfer of energy, exchange of energy between system and surrounding. Now piston के movement के time पर, ठीक है, piston के movement के time पर what is happening is the particles पहले भी हिट कर रहे थे, अभी भी हिट कर रहे हैं, तो यहां पर the hitting pattern is slightly more coherent, मतलब particles, और शायद हम ऐसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एक टाइम पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हिटिंग द सरफेस would have increased, due to which, and they would have become coherent also, due to which this piston has started moving in backward direction. Is it okay? Yes, sir. Okay. See, it's like if a single gas particle come and hit it at one moment, it goes back, then the second one, that is all the particles are, if they would have been actually random, they would have hitted it at different point of times, ठीक है. अब वो टाइम डिफरेंस ऑब्वियसली माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड का रहेगा, बट देयर वुड बी अ टाइम डिफरेंस, और अगर टाइम डिफरेंस रहता है तो गैसियस पार्टिकल का मोमेंटम, सॉरी मास, इनर्शिया फैक्टर, और इस पिस्टन का इनर्शिया फैक्टर के अंदर डिफरेंस होने की वजह से, कैन यू इमेजिन, पिस्टन मूव करेगा. इट्स लाइक कोई भी एक भारी सी चीज रख दो और उस पर फूल से तुम मारते रहो, ठीक है, एक फूल मारो, दूसरा फूल मारो, तीसरा फूल मारो, चौथा फूल मारो, फूल एज इन कोई भी हल्की चीज से आप उसके ऊपर हिट करते रहो, डू यू थिंक इट इज एवर गोइंग टू मूव? No, sir. नो. बट इफ आई कलेक्ट अ बंडल ऑफ सच थिंग्स, जैसे 100 से मैंने अलग अलग टाइम पे मारा, और वो 100 को एक साथ लेकर के और फिर उसकी तरफ फेंकते हैं, द चांसेस ऑफ द bigger thing moving will be greater when I am going to throw all the 50 things together on it. ठीक है. I'm not saying uh, it will surely move it, but the chances are better. ठीक है. 100 से नहीं होगा, सॉरी 50 से नहीं होगा, 100 वैसी चीजें ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, फिर शायद मूव कर जाएगा, but the chances are going to improve. Am I making sense? Yes, sir. एंड वन थिंग इज वेरी मच श्योर कि सिंगल सिंगल अगर मैं मारते रहता, पूरी जिंदगी भी मारते रह जाऊं, दैट वुड आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू मूव दैट लार्ज मास पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल पिनिंग पार्टिकल्स, ठीक है. एंड दैट इज द केस विद दिस पिस्टन एंड द गैसेस मॉलिक्यूल्स. एम आई राइट? अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स इनकोहेरेंटली इस पिस्टन वॉल को आकर के हिट कर रहे हैं, तो फिर इस पिस्टन को मूव करना बैकवर्ड डायरेक्शन में, इट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क.
that can only happen if the particle would have coherently hit the piston, ठीक है। और कोहेरेंट हिटिंग की वजह से ये बैकवर्ड मूवमेंट होती है, एंड दिस बैकवर्ड मूवमेंट क्रिएट्स सम यूजफुल चेंजेस और डिजायर्ड चेंजेस as per our expectations or as per our design, right? And therefore work is considered as an organized form of energy, whereas heat, where the randomization of particle is increasing or decreasing, ठीक है। कोहेरेंसी बिल्कुल नहीं, that is randomization is either increasing or decreasing. Now decreasing randomization को we call, or we can say that the coherency is slightly improving, but the coherency is not only about decrease in randomization, ठीक है। एब्सोल्यूट सेंस में या मैथमेटिकल सेंस में देखें तो हाँ ठीक है, इनकोहेरेंसी अगर डिक्रीज हो रही है या रैंडमनेस अगर डिक्रीज हो रही है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है मतलब इनकोहेरेंसी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब कोहेरेंसी बढ़ रहा है। दैट इज ट्रू इफ यू आर जस्ट गोइंग टू फ्रेम इट इन लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। रियलिटी हीट के ट्रांजेक्शन से the randomization in system can decrease or increase, but coherency level does not improve. Coherency level नहीं improve करने का मतलब क्या है? At any point of time, the number of particles hitting any of the walls are not going to be uh, simultaneous or coherent process. Is it okay? Merely by transaction of heat, the molecules hitting the walls cannot be made coherent process, or process which is happening at or which is happening simultaneously, ठीक है। Is it clear? Are we clear about the basic idea of organized form of energy and unorganized form of energy, or rather say useful or unuseful? इस बात की Yeah. क्लैरिटी हम लोग को मिली। एक में रैंडम वॉक्स इंप्रूव या डिक्रीज करता है, और यहाँ पर कोहेरेंट मूवमेंट या कोहेरेंट पुश ऑफ पार्टिकल्स is one which creates this type of thing. Not only this, over here only, इस पिस्टन के मूवमेंट से जो भी हम यूजफुल एक्टिविटी करेंगे उसमें भी एक सेगमेंट ऑफ एनर्जी जो होगा दैट इज गोइंग टू क्रिएट चेंजेस इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, और उसका एक कंपोनेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वेस्टेड इन ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड चेंजेस एज हीट, ठीक है। ये हर जगह पे हर प्रोसेस के अंदर में हमको ये देखने के लिए मिलता है। किसी को भी हम अगर किसी भी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे, कुछ पोर्शन उसका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में निकलता है, कुछ पोर्शन उसका अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में निकलता है। ओके, लेट मी पुट इट इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स।
देखिए हीट के साथ जो बेसिक चीज एसोसिएटेड है ये कंट्रोल चेंजेस एंड अनकंट्रोल्ड चेंजेस, दैट इज समथिंग व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. नाउ ये अगला इम्पोर्टेंट दो तीन चीजें इसके बारे में हीट के रिगार्डिंग. और हीट इज एक्चुअली एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ variable. Heat is an extensive extensive variable. It will depend upon the amount of substance being taken. Apart from that, uh, between state function and path function, it is a variable which is uh, path dependent variable. ठीक है. It is a path dependent variable, that is which path we are going to follow उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा. इसका मतलब ये पीवी कर्व पे अगर मैं यहां से यहां इस डायरेक्ट रास्ते से आता हूं और ऐसे घूम के आता हूं, ठीक है, दोनों प्रोसेसेस में हीट क्या होगा, हीट एक्सचेंज जो होगा वो अलग अलग होगा. बात समझ में आ रही है? मैं घूम के आऊं, डायरेक्टली आऊं, डायरेक्ट वाले में हीट हमको अलग एक्सचेंज करना पड़ेगा और दूसरे वाले फॉर्म में क्या होगा, हीट हमको अलग अमाउंट का एक्सचेंज करना. इज इट ओके? So it is a path dependent variable or simply path function. Next important point is flow of heat can only take place due to difference in temperature. If there is no difference of temperature, there won't be any transfer of heat which can take place. So the motivator for transfer of heat, the unorganized form of energy, is what? Difference in temperature. Is it okay? Yes, sir. Heat can flow between system and surrounding only when there is temperature difference. That is
delta T is motivation for heat energy flow. ठीक है. Heat is generally represented by Q and it has been observed that heat flown, heat released, flown के बदले released और absorbed by a system follows two things. Number one, Q is directly proportional to एक्चुअली ना यहाँ पर एक चीज इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देता हूँ. Heat released or absorbed is heat released or absorbed. अब इसमें भी थोड़ा सा ये होएगा whether it is released or absorbed, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. उसको Q बोलेंगे या एक को Q बोलेंगे तो दूसरे वाले को माइनस Q बोलेंगे and so and so forth. Is represented observe that follows Q is directly proportional to delta T. ठीक है. The temperature difference between heat source and heat acceptor is it okay? Yes, sir. And second thing is Q is also directly proportional to mass of system. अब ये कहाँ से आया? These two things has primarily come from empirical या फिर empirical relationship बोल सकते हैं या फिर experimental relationship बोल सकते हैं. This is experimental finding. This is experimental law. ठीक है.
इट हैज नो लॉजिकल बैकिंग है इसके पास, बट इट इज नॉट थियोरेटिकल, इट इज एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है. And till now we have never been able to disapprove it through any counter example or counter experiment, ठीक है. We haven't found any experiment जिसमें Q is not directly proportional to either delta T or is not proportional to mass of the system, ठीक है. We do not, or we have never been able to create any such counter example. Therefore, despite of not having that साउंड थ्योरेटिकल बैकिंग, मतलब अब जा करके हमारे पास साउंड थ्योरेटिकल बैकिंग्स आ गए हैं, बट दीज लॉज वेयर द प्रिमिटिव लॉज. प्रिमिटिव मतलब, अब प्रिमिटिव कोई भी चीज नहीं है, बट हाँ, बेसिक एवोल्यूशन ऑफ साइंस जहां से चालू हुआ 1500-1600 से, लगभग तब से ही हमको इस चीज का आइडिया लग गया था कि दीज आर द बेसिक थिंग्स और इसके ऊपर हमारा साइंस बिल्ड होने वाला है, ठीक है. आइडिया क्या लग गया था, दीज लॉज वेयर प्रेवलेंट दोज डेज आल्सो. एम आई मेकिंग सेंस? और हमने लाइक क्वांटम साइंस के बेसिस पर लॉजिकल प्रूफ कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डेल्टा टी के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए मास के, इसका थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन जो हुआ वो हम लोग काफी रिसेंटली 1920s के आसपास में क्रिएट कर पाए हैं, ठीक है. 1920 1930 में क्रिएट कर पाए हैं. एंड उसके लगभग 300 से 400 साल पहले से हमको ये प्रोपोर्शनैलिटी पता थी, हम इसको इफेक्टिवली यूज कर रहे थे. इज इट राइट? ओके, लेट मी नाउ कॉल इट like this. Q is going to be directly proportional to mass into delta T. Is it okay? Yes, sir. यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is देखो, जहां पर भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन होती है उसको हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को और इक्वेट करते हैं, तो वी हैव टू introduced a constant of proportionality, right now that we are very much aware of. अभी तक पता चल गया होगा हम लोगों को. सारे लोगों को पता है ये बात कि नहीं पता है? Yes, And sir. whenever we have a proportionality between two variables, and whenever we uh, proportionality को replace करके and we try to introduce equality sign, we have to consider that constant into consideration, ठीक है. तो यहाँ पर constant of proportionality जो है उसको हम लोग एक specific name से जानते हैं, and that specific name is, constant of proportionality is known as specific heat capacity. क्या बोलते हैं उसको? What do we call it? Specific heat capacity, ठीक है. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग दो अलग अलग ये से डिनोट करते हैं, ठीक है. एक कॉमन इसका जो है वो कैपिटल एस होता है, ठीक है, या फिर कैपिटल सी से भी हम इसको डिनोट करते हैं. दोनों ही यूज करते हैं हम इसको डिनोट करने के लिए. इट कैन आइदर बी डिनोटेड बाय कैपिटल एस और कैपिटल सी.
ठीक है, तो our equation thus becomes Q is equal to CMT या MCT इसको बोलते हैं, MC डेल्टा T, ठीक है, या फिर MS डेल्टा T। क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो, मास को अगर मैं 1 यूनिट ले लूं और टेम्परेचर राइज को भी 1 यूनिट ले लूं, ठीक है, तो किसी भी सिस्टम के यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का। इज इट ओके? So we are going to look at specific heat capacity in a bit detail, ठीक है, क्योंकि ये एक important पैरामीटर होने वाला है going forward. So I need to talk about it in some great specific details, ठीक है। We cannot leave it otherwise, क्योंकि फिर हमारा पूरा concept of thermodynamics जो है वहीं otherwise हो जाएगा। Specific heat capacity. कैपिटल C और कैपिटल S। आई थिंक बचपन में हम लोगों ने MS डेल्टा T पढ़ा होगा। अभी हम लोग प्राइमरली C के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, तो C या S दोनों फॉर्म इसका होता है, सो इसीलिए दोनों मैंने बता दिया, ठीक है। डिफाइन कैसे करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of any system sorry unit mass of any system, raise temperature of unit mass of any system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, ठीक है। The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a system by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. क्लियर है यहां तक? अच्छा, एक चीज इसमें और मुझे बताना होगा, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अगर हम मास के टर्म्स में ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका यूनिट कैसा रहेगा? Q is equal to MC डेल्टा T। Q क्या है? जूल्स डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, तो C की यूनिट क्या रहेगी? यूनिट ऑफ C विल बी जूल पर kg डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर और जूल पर kg केल्विन, ठीक है। Either of these two are going to be unit of C. Okay. Next thing is, if I define my quantity, क्वांटिटी को हमेशा मास के टर्म्स में ही डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है या मैंडेटरी नहीं है। वी कैन
also define our quantity. यहाँ पर proportional to m होने का मतलब है mass of the system or rather we can say quantity of the system. ठीक है, और quantity of system of the system. ठीक है ना. क्वांटिटी हमेशा जरूरी नहीं है कि मास के टर्म्स में ही हम डिफाइन करें. वी कैन आल्सो डिफाइन इट इन सर्टेन केसेस इन टर्म्स ऑफ मोल्स. एम आई राइट? हो सकता है ना मोल्स के टर्म्स में. ठीक है, तो यहां पर देयर इज स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज. स्लाइटेस्ट ऑफ चेंज क्या होता है? इंस्टेड ऑफ ये m के प्रोपोर्शनल होने के n के प्रोपोर्शनल हो जाएगा. Q will become directly proportional to n, the number of moles, and then it will be written as Q into n into delta T, right? मोल्स के टर्म्स में रहेगा तो क्या रहेगा? Q is directly proportional to delta T and Q is directly proportional to n. Therefore, Q is directly proportional to n into delta T. यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट ऑफ proportionality is molar heat capacity. ठीक है, also written as CM. ठीक है, molar heat capacity is also represented by generally CM, या फिर इसको सिर्फ C से भी इंडिकेट करते हैं. ठीक है, और जस्ट C. कभी कभी जरूरत पड़ती है तो एक्चुअली मतलब एक चीज और बताने वाला हूं मैं. इसको मोलर को m रहने देते हैं एंड देन थोड़ी देर में मैं कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम का आइडिया इंट्रोड्यूस करूंगा. तो वहां पर this same C, the molar heat capacity at constant pressure will be written something like this: Cp comma m and Cp comma m. ठीक है, so we are going to see them. अभी के लिए Cm और C, either of these two can be used. अब obviously ये C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मोलर हीट कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पता हमको कैसे चलेगा? वो यहां से पता चलेगा. यूनिट वो क्या है? इफ इट इज इन केजी पर केल्विन या इफ इट इज इन जूल पर मोल केल्विन. ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा? यूनिट विल बी यूनिट ऑफ CM is joule per mole Kelvin. Is it okay? Joule per mole Kelvin. क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर है सर. टू अदर्स, बाकी लोगों को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. मोलर हीट कैपेसिटी. अब यहां पर हीट कैपेसिटीज के रिगार्डिंग
एक चीज और भी मैं बता दूं, मेनी अ टाइम्स हम लोग करते क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के टाइम पर या क्वेश्चंस वगैरह में, इंस्टेड ऑफ गिविंग दीज टू इंफॉर्मेशन सेपरेटली, ठीक है, इंस्टेड ऑफ गिविंग m into c सेपरेटली या n into c सेपरेटली, ठीक है, this equation will become what? Q is equal to n into cm into delta t, ठीक है. So instead of giving this information separately, they may give it together, and together this thing is called as thermal capacity, ठीक है. So whether it is m into c or n into cm, ठीक है, both of them together is going to be called as thermal capacity. Both are known as thermal capacity of material. यूनिट क्या होगा दोनों का? अब वेदर मोलर फॉर्म में है या फिर पर यूनिट मास के फॉर्म में है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मोलर फॉर्म में है तो जूल पर मोल पर केल्विन है, और इसमें मोल से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? जूल पर केल्विन. और यहां पर क्या है? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस है या पर केल्विन है, ठीक है. इसको यूनिट मास मतलब केजी से 1 केजी से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? जूल पर केल्विन. सो इसका यूनिट क्या रहेगा थर्मल कैपेसिटी ऑफ मटेरियल का? In either of the cases, whether it is through this route or through this route, unit of thermal capacity is unit of thermal capacity. Capacity is joule per Kelvin or joule per degree Celsius. Clear till this point? Next task for us to understand is अब यहां पर सी और मटेरियल हमारे पास जो होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स हमारे पास प्राइमरली या तो 3 डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं. मटेरियल्स कैन बी इन 3 डिफरेंट phases: solid, liquid एंड गैस. इन दोनों के लिए वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है. इसका वॉल्यूम वेरिएबल रहता है. वॉल्यूम इज वेरिएबल, ठीक है, एंड विल डिपेंड अपॉन द कंटेनर दैट वी नो. अब ये वॉल्यूम चेंज की एफिशिएंसी इसकी जो होती है दैट इज इनफाइनाइट. वॉल्यूम चेंज एफिशिएंसी ऑफ volume change efficiency of gases are too high, whereas that of solid and liquids are too low. Is it okay? Yes, sir. Now, based on this fact, what happens is
for solids and liquids, we just have one value, one specific or one particular value of specific heat और molar heat capacity. ठीक है, जैसे कोई चीज अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और या फिर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर वॉल्यूम चेंजेस जो होते हैं वो होता नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड रहता है. ठीक है, या हुआ भी तो बहुत ही इन्फिनिटेसिमल चेंज होता है, जिसकी वजह से उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है वो यूनिक वैल्यू होता है. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दे हैव almost a single unique value of specific heat or molar heat capacity. ठीक है. However, गैस के केस में the molar heat capacity or specific heat capacity values are quite different. They can be very different. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हम वॉल्यूम चेंज को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं. ठीक है, क्या हम वॉल्यूम को फिक्स्ड रख रहे हैं या फिर वॉल्यूम को फ्रीली चेंज करने के लिए छोड़ रहे हैं या फिर वॉल्यूम को किसी कंस्ट्रेंड फॉर्म में इंक्रीज करने के लिए अलाउ कर रहे हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ वॉल्यूम चेंज आर वी अलाउइंग, ठीक है ना, the specific heat capacity of gases change according to that. Am I making sense? ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं है, अभी मैं 5 मिनट और थोड़ी सी चीजें बताता हूं, फिर समझ में आ जाएगा. ठीक है, हीट का काम क्या है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना. टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट का फ्लो होगा. इस सिस्टम के पास हीट आ गया, ठीक है, सपोज इस सिस्टम के पास हीट आ गया, तो हीट आने के बाद क्या हुआ? इसका टेम्परेचर बाय दैट डेल्टा टी अमाउंट बढ़ जाएगा. जिस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इसमें हीट आ रहा था उतना इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. टेम्परेचर बढ़ गया मतलब इनके पार्टिकल्स का रैंडम मोशन जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा. बट सॉलिड्स एंड लिक्विड के केसेस में अगर उनका फेज मेंटेन्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इवन विथ दिस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ रैंडम मोशंस, द पार्टिकल्स आर स्टिल इंटैक्ट एंड अंडर ईच अदर्स अट्रैक्शन. ठीक है, इसलिए वो ब्लंटली मूव नहीं कर रहे हैं. राइट, दैट इज ट्रू फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. Yes, sir. Am I right? The position of particles are going to not change much relatively. ठीक है, but gaseous system में क्या होगा? Gaseous system में do we have the similar level of hold? No. Right ना? Gaseous system में similar level of hold नहीं होता है हमारे पास ना. The particles are far apart and with supply of energy or heat, the random motion is going to increase, and chunki the attraction level between the molecules are not that high, there is very small, I mean attraction hota hai but to a very small level, they are more free to move farther and farther. ठीक है, if the boundaries are not constrained. Am I making sense? अगर बाउंड्रीज फिक्स नहीं है, एक फिक्स्ड कंटेनर में हम उनको बंद करके नहीं रखे हैं, तो दे कैन मूव एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, अगर हमने बाउंड्री यानी कंटेनर को फिक्स वॉल्यूम का करके रखा है तब क्या होगा? ये फार अपार्ट नहीं जा सकते हैं.
फार अपार्ट नहीं जाएंगे तो क्या होगा, जो एनर्जी आई दैट इज गोइंग टू क्रिएट जस्ट द टेम्परेचर राइज। अगर ये फार अपार्ट जाने के लिए अलाउड है, यानी यहां पर बाउंड्री जो है वो कंस्ट्रेंट नहीं है, तो कुछ पार्ट जो होगा इनका टेम्परेचर राइज करेगा एनर्जी, और कुछ पार्ट जो होगा वो क्या होगा, इन चीजों को दूर ले जाने, एवरेज सेपरेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। एम आई मेकिंग सेंस? So there will be two components. One will be utilized to rise the temperature or raise the temperature, and the other component will be utilized in order to separate the particles far apart. Am I making sense now? Whereas Yes. solids and liquids में second वाला phenomena जो होगा, that is pulling particles apart, that will not be very true. ठीक है, होता है वहां पर भी, जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फेज होता है तभी होता है, यानी लिक्विड जब गैस के अंदर चेंज करेगा तभी फिर सेपरेशन फ्री होता है, तो वो लैटेंट हीट पर होता है, टेम्परेचर राइज करने वाले हीट से नहीं होता है, राइट ना? दैट वी आर गोइंग टू डू सेपरेटली। एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. Yes, sir. सो यहां पर और हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की का वैरायटी या वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू फेज हमारे दिमाग में स्टैब्लिश हुआ क्या? For solids and liquids, we are going to have unique value. Actually unique नहीं होता है, but हाँ 98% 99% तक यूनिक होता है, ठीक है? उसके अंदर भी बहुत स्लाइट वेरिएशन रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है, ठीक है? बट ये फिर भी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का सी जो होता है वो लगभग फिक्स्ड होता है। लगभग फिक्स्ड होता है का मतलब है कि टेम्परेचर वगैरह चेंज के साथ या ऐसे भी और सेम टेम्परेचर पर भी मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसेस नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है, एक ही प्रोसेस है। वॉल्यूम का एक्सपेंशन थोड़ा बहुत अगर होना है तो होना है, बाकी और कोई प्रोसेस ही नहीं है हमारे पास, ठीक है? यहां पर जबकि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, या तो हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पर कर सकते हैं या फिर कांस्टेंट प्रेशर पर कर सकते हैं, मतलब इसको फ्रीली एक्सपैंड होने के लिए छोड़ दिया हमने और हीट देते गए, तो ये बढ़ेगा भी, वॉल्यूम भी एक्सपैंड होगा इसका, और प्लस टेम्परेचर भी राइज होएगा, सच दैट प्रेशर जो हो सिस्टम का इनिशियल प्रेशर के बराबर मेंटेन रहे। अब इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग प्रेशर इक्वल टू इनिशियल प्रेशर, I can choose to maintain some other pressure, right? या vary the pressure with some relationship, isn't it? And that is how polytropic process came into being. प्रेशर या वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशन है वो किसी भी हम आर्बिट बिहेवियर में या अपने डिजायर्ड ये डिजायर्ड फेनोमेना से चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या डिजायर्ड रिलेशनशिप में उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर हम टेम्परेचर राइज को नोटिस कर रहे हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो भी हमारा डिजायर्ड रिलेशनशिप है v रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके हिसाब से ये एक्सपैंड होएगा, ठीक है? एंड there a component of it will go to raise the temperature of the gaseous system, ठीक है? और दोनों को कंबाइंड करके हमको डेल्टा टी टेम्परेचर राइज मिला, नंबर ऑफ मोल्स। तो सी क्या हो जाएगा, अलग अलग जिस तरीके से हम इसको चेंज करना चाहते हैं उस प्रोसेस के लिए एक अलग सी होगा, ठीक है? तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम प्रोसेसेस कैसे करना चाहते हैं, प्रोसेसेस मतलब प्रेशर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का चेंज हम किस तरीके से करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं,
थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं या फ्रीली बढ़ाना चाहते हैं या किसी कंस्ट्रेंट फॉर्म में, और कंस्ट्रेंट फॉर्म अलग अलग कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, पीवी स्क्वायर हो सकता है, पीवी क्यूब हो सकता है, पीवी टू द पावर 4 हो सकता है, सो ऑन सो फोर्थ, जैसे आपकी इच्छा वैसे बढ़ाइए, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द गैसियस सिस्टम than over the solids and liquid systems. Are we getting this point? And Yes, sir. therefore, for gaseous system, we can have multiple specific heat capacity or molar heat capacity. ठीक है? But for solid, it is almost a unique value with very little variation, very little variation. ठीक है? जबकि यहां पर क्या होगा, we have freely changing specific heat or molar heat capacity as per the processes defined. Am I making sense? Yes, sir. सारे लोगों को ये बात समझ में आई है, नहीं आई है? All of you. Yes, आ रही है. प्रतीक्षा, रुबीसा, अनुश्रेष्ठ, Yes, sir. I said yes. अनुश्रेष्ठ, नहीं आवाज नहीं आ रही है आपकी. हेलो हाँ अभी आई, बोलिए. समझ में आया? सर, एक बार वापस से बता दो ना. ओके ठीक है. सी यहां देखिए, whenever we supply heat, तो हीट सप्लाई के साथ दो चीजें होती हैं. ठीक है? हीट का एक कंपोनेंट जनरली मॉलिक्यूलर मोशन को इंक्रीज, रैंडम मोशन को इंक्रीज करने में जाता है, जिसकी वजह से दो चीजें हो सकती है. पहला चीज हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्ट एक दूसरे से कोलाइड करें और कोलिजन पे टेम्परेचर का इंक्रीज जो होता है वो होता है. ठीक है? दूसरा चीज ये होता है कि रैंडम मोशन अगर इसका बढ़ता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं. अब सॉलिड या लिक्विड में क्या होता है कि ये दूर जाने वाली टेंडेंसी जो है ये बहुत ही अनकॉमन है. ठीक है? दे हार्डली गो अपार्ट, द मॉलिक्यूल्स हार्डली गो अपार्ट. ठीक है? तो हम जो भी हीट यहां पर प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगा, मोस्टली टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जाएगा. राइट? और इसकी वजह से the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Kelvin for unit mass is going to be always fixed or is going to have a unique value. ठीक है? वो चाहे 100 डिग्री से 101 डिग्री लेकर के जा रहे हो या 50 से 51 लेकर के जा रहे हो, it is always going to be a fixed value for 1 kg of the system's mass and for 1 degree Celsius or 1 Kelvin rise in temperature. ठीक है? इसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि सॉलिड्स एंड लिक्विड का स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज यूनिक या सिंगल वैल्यू. ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज गैसियस सिस्टम. गैसियस सिस्टम में क्या है, दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है. ठीक है? पहला, रैंडम मोशन की वजह से इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ जाएगा. ठीक है? सेपरेशन कैन इंक्रीज. और कैन नॉट इंक्रीज ऑल्सो. और दूसरी चीज क्या होगी, रैंडम मोशन बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है? अब पॉइंट ये है कि मैंने ये बोला कि सेपरेशन कैन इंक्रीज. ठीक है? और सेपरेशन में इंक्रीज, रादर कैन इंक्रीज इज अ बेटर वर्ड. ठीक है? बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है.
अब ऑब्वियसली जब बढ़ रहा होगा और जब नहीं बढ़ रहा होगा, जब बढ़ रहा होगा तो जो भी हीट हमने प्रोवाइड किया, जैसे 5 जूल हमने प्रोवाइड किया 1 kg को, ठीक है, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो चला गया इन दोनों पार्टिकल्स को, इसके पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने में, ठीक है, समझो 3 जूल चला गया दूर दूर ले जाने में, तो एक्चुअली 2 जूल ऑफ एनर्जी ही सिर्फ बची जो टेम्परेचर को राइज करने में यूज हुई। और मानो 2 डिग्री, सॉरी 2 जूल की वजह से टेम्परेचर राइज जो हुआ वो 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो 1 डिग्री सेल्सियस से इस कंडीशन में टेम्परेचर को राइज करने में हमको एक्चुअली कितना जूल ऑफ एनर्जी लगा? 5 जूल ऑफ एनर्जी लगा। मास 1 kg और टेम्परेचर राइज 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस कंडीशन में क्या हो गया? 5 जूल/kg/केल्विन, राइट। अब हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, देखो, और दूसरी चीज क्या है, ये 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने में टेम्परेचर को हमेशा 2 जूल ऑफ एनर्जी ही लगेगी, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। अब हम यहां पर जैसे प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज हो रहा था उसके बीच में रिलेशनशिप का कुछ ऐसा था। अभी हमने डिसाइड किया नहीं, ऐसे चेंज नहीं करना है, मुझे ऐसे चेंज करना है, ठीक है। जब हम इस रिलेशन के हिसाब से वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तब हमको पता चला यार अब 5 जूल से काम नहीं चल रहा है, आई हैव टू प्रोवाइड 7 जूल्स ऑफ एनर्जी।